Myself, Dr. Rupal Karwa. I am a homeopathic consultant. First, I would like to pay homage to the founder and the father of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann, without which neither the homeopathy would have persisted or nor we homeopaths. It was his efforts, dedication, and perseverance because of which homeopathy, the science, the amazing science is existing. Later on, I would like to pay, I would like to dedicate this entire session to the pioneers of homeopathy who have dedicated their entire life for the future of homeopathy. They are the source of inspiration for the future generation altogether. Thanks to the Bhargav Phytolab for giving me the opportunity to be here with you all. I would like to dedicate this session to our master, Dr. Ashok Mohanty sir, all the OCHM mentors, Dr. Manish Patil, Dr. Swapnil Ghaiwat, Dr. Sonal Panchabhai, Dr. Smita Adikine, Dr. Sachin Dhamgai, and all the OCHM members. Next, I would like to thank all the HHF mentors, Dr. K.Y. Dinde sir, Dr. Mayuresh Mahajan sir, Dr. Sunil Ghodke sir, Dr. Yogesh Rajurkar sir, and all my teachers, without which I would have not been existing as a homeopath right now, which I am there today. Now, today I would be discussing a case of a child with the behavior problems. Rarely will a child under 5 years of age receive any diagnosis of certain behavior disorders like ADHD, oppositional defiant disorder, autism spectrum disorder, anxiety disorder, depression, bipolar disorder, learning disorders, and conduct disorders. These are some of the disorders we see in the childhood generally. Many of you have heard of these symptoms, the behavior disorder the people are going through, but we don't discuss these disorders generally out of the clinic. Discussing the childhood psychology is often uh, rested out of the question, as we consider behavior disorder as the stubborn. So what we need is empathy, a cooperative disorder, a calm temperament are the crucial traits for parents to adopt as their child struggle through the behavior disorder. And knowing where to ask for the help is the key ingredient. If your child's behavior becomes disruptive, which is interrupting the regular running of the education or any household matter, and if the child is becoming very much violent, it is the time where you need to talk to the professional. And this is the time where you should seek for the professional help. Raising child with behavior disorder isn't easy, but you rush to diagnose them or turn into strict disciplinarian, reach out for help. Your physician will always provide you the insight into whether your child's behavior is
normal for his age or not, and he will always provide the resource assistance whatever is needed by the child. Now, what is normal behavior? It's normal for a child or youth to act out, to protest whatever he is feeling from time to time. But this may seem grumpy or angry when they are very much tired or they are feeling very upset. A lot of stress is also responsible when they show their anger outside outburst generally. It is also normal for a child or a youth to do it usually during the certain time period of their life. Certain circumstances make them to act this way often, but this is often seen in preschool aged children and in the teens, in particular, where they seem to disobey or talk back. This is a normal part of a growing up. The signs for oppositional defiant disorder includes very angry and negative behaviors that last for many months, usually up to 6 months. These symptoms often happen very soon. This causes a lot of problem in the child or the youth's life. They may face social problems also because of these disorders. With this disorder, the child may often become angry, irritable. He may argue with the parents, with the teachers, and with other adults around him. He may be very mean, he will be very hurtful, very spiteful, or very vindictive. You can see such signs and symptoms of oppositional defiant disorder before the child is generally of 8 years of the age. It starts very slowly and very gradually. Parents may notice the change in the behavior of the child at the home first, but the disorder may start to affect other parts of the child's life, such as the school, his friend circle, his social life is also affected with this kind of disorder. The length of the time that symptoms last is different for everyone. Many of the children recover, but some of them develop conduct disorder or any other type of mental health disorder. Before puberty, boys than girls have more of the boys have this type of disorder, very common. But after puberty, both have almost the equal ratio where they suffer. The sign of conduct disorder includes behavior that go against the rules, and these symptoms last for many months altogether, or usually these symptoms last for more than 12 months of his age. These symptoms also happen very often. This causes a lot of problem in the child's behavior. Because of this disorder, the child may often become very much aggressive. He may hurt the people around him. He may fight around with the people around him. He may use weapons to injure the people around him. He may harm anyone around his. He may intentionally destroy the property of other people. Rather, he purposefully do these things. He is he may tell many things which lie to get something or to avoid any kind of responsibility he may have to face in future. He may steal, break,
into the house or in the car or steal anything that is important to someone else. He will purposefully destroy the things or steal the things which is very valuable for the other people. Knowingly, he destroys it, breaking serious kind of rules. He may skip the school, he may not do his homework, he may run away from the house, and many other disorders that are usually faced by the children. Conduct disorder usually happens between the age of 16 to 15 years of age of the child, and it is more common in boys than girls. Now, intermittent explosive disorder. This disorder is diagnosed in the children who are at least 6 years old. These children and the youth have repeated angry outbursts which is very unproportionate to the situation which they are facing, and this response is not at all planned. The child or the youth becomes very aggressive in words and actions. He may damage the things, whatever he see near around him. What can we do while we face such kind of the children around us? We need to go for counseling, the skill trainings, change at the home atmosphere, change at the school. If the behavior affects his schoolwork a lot, treatment for other mental health राजू challenges गद्दी or लटक रहा है disorders. दरवाजा काट रहा है Treating ADHD often ends problems with oppositional defiant disorder. Counseling generally does not help very much in this condition. So skill training is very important factors which has to be looked after. We have to grasp what the child is interested in. We have to counsel him what he likes to do. If he is very much interested in drawing, we have to utilize his energy in the drawing. Whatever activity he is interested in, we have to use his energy. As the child is very much hyperactive, you have to use his energy in the course which he likes. That is the only change we can help him. Also, some changes are to be made in the home where the parents play the key role in handling such kind of the children. Also, in school, teachers play a very important role in such type of children's behavior. Now, we will go through a case. This is a case of a boy, almost 10 years of his age. As I was only available in the clinic for 5 to 7 p.m. in the evening, he used to come by 7:30 around in the clinic, and every day he used to go back. This happened almost for the week. So now the parents were very much hesitating. What can we help out? So they called me and asked, when should I come to you? I asked them to come by 5 o'clock. Almost after the struggling period of 1 week, they came to me and managed to come to me at 5 p.m. So the case this way. This is a case of a child of 10 years of age who came with his mother and aunt. He was forcefully sent by his father to the clinic as he has heard many of the things that homeopathy helps these kind of people in sorting out the problem. First of all, बच्चे की जो माँ है वो चैम्बर में आई
और उसने इंक्वायर किया कि ये प्रॉब्लम के साथ में मैं क्या क्या कर सकती हूँ और होम्योपैथी इसके साथ में कितना मुझे हेल्प आउट कर सकेगा। यहाँ पर पूरा के पूरा स्टोरी जो है उसकी आंटी ने, उसकी चाची ने ही नरेट किया था। टिल दैट टाइम उसकी माँ और वो बच्चा दोनों भी बाहर ही बैठे थे। ये बच्चा एक जॉइंट फैमिली को बिलोंग करता है, वेयर ही स्टेज विथ हिज पेरेंट्स, his elder sister, his grandparents, his uncle, his aunt, and their children. Their children, they both are, and this boy and the boy, his sister, these four people are of the same age group. He is the youngest one in the family. और ये बच्चा जो है ये बहुत ही ज्यादा मिस्चीवियस है, इतना शरारती है कि एक मिनट के लिए भी शांत बैठता नहीं है। यहाँ उसके हाथ में जो भी आएगा वो उसको फेंक के मारेगा, एंड ही गोइंग टू डिस्ट्रॉय वॉट एवर ही लाइक्स। ये अपने आप टैंट्रम्स भी बहुत फेंक देता है। इसकी हर बात मानना घर में सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क जैसा हो गया है। अगर इसके कोई डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो he is going to show you some or the other tantrums. He is using very abusive words to the parents. मम्मी पापा दिखे इसके लिए सामने आए, इसको ये बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता है। उनकी कोई भी बात उनको यूज कर उसको पसंद ही नहीं आती है। जो भी चीज उसके पेरेंट्स ने बोली है उसके अगेंस्ट में ही इसको जाना है। यहाँ तक कि उसको अगर कोई चीज चाहिए और वो नहीं दी है तो उसको शांत करने के लिए एक ही चीज है कि उसको अभी के लिए तो प्रॉमिस कर दो कि ये चीज जो है वो आपको मिलने वाली है, लेकिन वापस जब वो रिकॉल करेगा तब वो चीज, वो डिमांड उसकी फुलफिल करना नेसेसरी हो गया है। इट इज मस्ट थिंग फॉर द पीपल अराउंड हिम टू फुलफिल हिज डिमांड्स, otherwise he is going to show any of the tantrums. Now boy came in the chamber along with his mother. अभी जब ये दोनों आए तो ये बच्चा जब एंटर किया ना तो उसका इच्छा ही नहीं था यहाँ आने का। ऐसे लग रहा था ये कौन सी जगह मुझे लेके आ गया। एज इट वाज अ होम्योपैथी क्लिनिक, तो उसको आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कौन सा जगह आ गया है, क्योंकि वो इसके पहले कई जगह ट्रीटमेंट ले चुका था जहाँ पे उसको कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। अभी जब वो चैम्बर में आया, उसकी मम्मी और उसकी आंट दोनों भी साथ में थे। उसकी आंट तो ऑलरेडी चैम्बर में बैठी हुई थी, वो आके उसकी आंट के बाजू में बैठ गया। उसकी माँ खड़ी है, बैठी है, उसको कोई परवाह ही नहीं, एकदम है नहीं है। इट वॉज लाइक कौन आ गया है मेरे आसपास। अभी मैंने उसको पूछा व्हाट इज योर नेम, वो मुझे मेरे पास देखने के बजाय इधर उधर देख रहा था। ये क्या है, कहाँ लेके आ गए, और ये क्या मुझे सवाल कोई पूछ रहा है। कॉन्स्टेंटली वो मुझे अवॉइड करने की ही कोशिश कर रहा था। बहुत प्यार से पूछा मैंने पहले, बेटा नाम क्या है आपका, बट ही इग्नोर्ड मी। नाउ आई आस्क्ड हिम इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, नाम क्या है आपका? तो देन ही आंसर्ड मी, माय नेम इज रोहित, रोनित, सॉरी इट्स रोनित। मैंने फिर से पूछा व्हाट इज योर फुल नेम? तो उसने बोला रोनित वैद्य नाव आहे माझं। अभी इसके बाद में मैंने उसको पूछा आपके पापा का नाम क्या है, वडिलाचं नाव काय आहे तुझ्या? He only said Sanjay with a very rude tone. Now I asked him क्या हुआ है आपको, why are you here in the clinic? तो उसने बोला मुझे थोड़े सा बुखार था इसलिए मुझे लेके आए हैं। तो मैंने उसके पैरामीटर्स चेक किए, उसको चेक किया तो उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। वो एब्सोल्युटली नॉर्मल, देयर वाज नो फीवर। देन मैंने उसको पूछा आप स्कूल गए थे आज? तो बोला नहीं, मुझे थोड़ा बुखार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, और आज मैं पूरा दिन घर पे ही था। फिर मैंने उसको पूछा आज आपने जो भी स्कूल में पढ़ाया वो
कंप्लीट किया? तो उसने बोला क्या जरूरत है करने की, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आज सिर्फ पेरेंट्स टीचर मीटिंग था और उसके साथ साथ में रिजल्ट था, बस, और कुछ भी नहीं। तो उसकी मम्मी मुझे बताती है ये हमेशा ऐसा ही करता है, ये हमेशा स्कूल जाना अवॉइड ही करता है, हर रोज इसको कोई नहीं तो कोई रीजन मिल ही जाता है और इसको अच्छे से पता है कि अपना काम मुझे कैसे करवा के लेना है। यहाँ तक कि उसको स्कूल भेजना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल है मुझे हम लोगों को इसको स्कूल भेजना। सुबह उठा के इसको ब्रश करा के नहला के कपड़े पहनाने तक की जिम्मेदारी हमारी है और इस बीच में उसका जो भी डिमांड आता है वो हमको पूरा करना ही पड़ता है। अगर नहीं किया तो उसके टैंट्रम्स शुरू हो जाते हैं, हाथ में जो भी आएगा वो चीज वो उठा के फेंक देगा, भले वो बुक्स हो, कप हो, चम्मच हो, कटोरी हो, कुछ भी हो। ये नहीं देखेगा वो कि वो चीज की वजह से किसी को कोई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी इस तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। इतना बोलने के बाद में उसके बाद में जो भी सवाल उसको मैंने पूछा वो बस मुझे गर्दन हिला के हाँ या ना इतना ही जवाब दिया और कुछ भी नहीं। ना केस डिस्कशन। एनी एनी सजेशंस? एनी सजेशंस? एनी ओपिनियन? Can you tell me any analysis? Yes. Diksha Makhija, right. Yes, very nice. He is a very pampered child. हर एक चीज उसकी पूरी की जाती है, right. Very nice, Dr. Mani. Charu. Nice. Any more analysis किसी ने भी नहीं बताया? Very nice, Dr. Kashmira. Sarika Muge, Stramonium. Please put your analysis also, Dr. Sarika. Want of morals. Or Dr. Jasmine. Your remedy, please, Dr. Jasmine. Yes, spoiled child, obstinate, very nice, anger violent, throws things in anger, right. Platina. Dr. Charu, please put your rubrics for Platina and analysis. Dr. Mubin Sheikh, your analysis and rubrics. Okay.
Anything else? Yes, abusive. He is very abusive. He is very destructive also. Right. He is very dependent on parents. Dr. Diksha Makhija, he is not dependent on his parents. He is dependent on his aunt. His aunt is doing everything for him. Okay, I will share my analysis now. My analysis and evaluation goes this way. The child is very angry and he was not at all listening to his parents. वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था. उसके पेरेंट्स के लिए उसका गुस्सा कंट्रोल करना इक्वल टू इम्पॉसिबल है. अकॉर्डिंग टू द मदर, वो सिर्फ उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. इवन ही हर्ट्स देम, he abuses her a lot. So I took the rubric abusive children parents, anger, throwing things around, rage, contradiction from, disobedience children in. Now according to the mother, उसकी कोई भी बात सुनना नहीं सुनना ये पॉसिबल ही नहीं है. उसको बहुत अच्छे से पता है कि कब कौन सी चीज किस तरह से मैनेज करनी है. इसलिए ये मैनिपुलेटिव है, ये हॉटी भी है, और ये जितने भी उसके कंप्लेंट्स है ये एकदम क्लियर सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर उसको बिहेवियर प्रॉब्लम है. सो द रूब्रिक गोज इज बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन, एंड दिस वाज माय प्रिस्क्रिप्शन. Lycopodium 200 single dose and SL was given for 20 days. अभी उसका फॉलोअप देखते हैं. यहाँ पे मैं केस नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी केस है और इतना टाइम और इतना इंटरनेट नहीं चलेगा उसको चलाने के लिए. तो उसका फॉलोअप में वहां पर कोई भी चेंज नहीं था. द चाइल्ड वॉज एब्सोल्युटली द सेम, वन एंड द सेम. एक पैसे का भी उसमें चेंज नहीं था. तो अभी मुझे सोचना पड़ा कि मैं कहाँ गलत हो गई हूँ. तो मैंने फिर से रीएनालाइज किया. व्हाट शुड बी, मैंने क्या छूट गया है, व्हाट शुड बी डू फॉर दिस नाउ. तो मैंने फिर से रीएनालाइज किया. तो मुझे यहाँ पर मिला ये रूब्रिक्स के साथ में, मैं इस रेमेडी के साथ में आई. इवन पहले भी ये रेमेडी के साथ पास में आ गई थी मैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स मुझे यहाँ पर मिले. He was a very disobedient child. He was very abusive. He was very much insulting his parents. He was throwing things around him in any kind of outburst. He was very much manipulative. वो स्कूल में और मैं बहुत अच्छा रह रहा था. सॉरी, आई फॉरगॉट टू से यू. वो स्कूल में बहुत अच्छा रहता था, बिल्कुल भी कोई कंप्लेन नहीं रहता था उसका. स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था. एवरेज मतलब ऑलमोस्ट 40% तक वो ग्रेड्स लेके आता था, लेकिन बहुत अच्छा बंदा था स्कूल में. कभी कोई टीचर ने उसके बारे में कोई कंप्लेन ही नहीं किया. लेकिन घर आते साथ ही उसकी शैतानियां शुरू हो जाती. उसके भाई बहन भी उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे. वो बहुत ज्यादा टेंट्रम्स देता था. सो टेम्पर टेंट्रम्स, contrary parents with, and breaking things. And here I landed with some another remedy, tuberculinum 200. This was my final prescription. रूब्रिक्स वही लिए हैं मैंने यहाँ पर जो कि मुझे दिखाई दे रहे थे. उसमें कहीं पर भी
चेंज नहीं किया, उसको कहीं पर भी रीएनालाइज नहीं किया, सिर्फ जो दिख रहा है उतना ही मैंने उसको लिया है। Now let's understand what tuberculinum is in short. Now, according to Dr. Shankaran, tuberculinum, यहाँ पर सबसे prominent features are the violence, the desire for change, the need to travel, the boldness, the daring, the shamelessness in the children. Tuberculinum patients often seem to break free from the bonds of any kind of society rules. They do things which cannot be termed antisocial, but they are at the borderline of which is acceptable to the society. We have young people nowadays who zoom around on the motorbikes, go in the wild, daredevil exploits, etc. They are seeking change and excitement. This represents to me the clinical picture of the tuberculinum, bold and rash. Now, according to Dr. Vittelkos, Dr. Pathak, the feats of violent temper, wants to fight, throw anything at anyone without any cause. He is very much dissatisfied, always wants a change, always wants to travel, does not want to remain at one place altogether for a longer time. He does different things. He even changes the doctor very frequently. He is very much weary of the life. He always avoids the mental work. He is very reckless. He whines and complains with very little element. Desire to use foul language, curse and swear. Changing moods, anxious, hopeless, contradictory mania and melancholia, insomnia and stupor. Now, iske anusar, now what Vittelkos says, I remember a case of a child who was 12 years of his age, who was brought by her mother. The problem was with the mother. She said, I cannot handle this child anymore. She is so bad and she acts in a way as if she wants to kill me. What the mother was suffering through with that child was tremendous. The sense was that the child would not let the mother enjoy a minute. The moment the child would see her mother enjoying anything, she would do something like breaking her favorite thing in order to produce any kind of disturbance in the mother. The child would go in a fit and have this pain or that pain if the mother was worn out and wanted to rest. It was a situation where the mother could not understand what was wrong with the child or what she wanted. When she was tried to be taught logically to the child, it was equal to impossible to communicate with her. Child does not know what she wants exactly. ये जो वर्बाटिम है विठलकॉस सर का, ये सेम वर्बाटिम अपने केस में भी देखने को मिला मुझे। यहाँ पर भी बच्चा माँ के लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वो माँ को बिल्कुल भी बैठने नहीं देता था, उसको माँ अपने सामने भी आई ना तो भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो अपनी माँ के साथ में बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करता था। थोड़ा बहुत सुनता था तो उसकी चाची का सुनता था वो, लेकिन अब वो भी बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा था। पढ़ाई भी करना है तो उसकी चाची ही करवाती थी उससे। माँ का किया हुआ उसको बिल्कुल नहीं जमता था। यहाँ तक कि माँ उसके सामने आ जाए ना तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हर एक चीज वो उठा के फेंकता ही था। बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था उसकी आंटी के लिए। इसीलिए हम ये अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि उसकी
वो लोग मुझसे मिलने के लिए ऑलमोस्ट 7 days तक वो मेरे क्लिनिक में रोज आ रहे थे। किस हद तक वो उनको हराश करता होगा, कितना डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए उसको हैंडल करना। आप सिर्फ अपना बच्चा सोचिए, अगर वो कोई चीज हम उसको नहीं दे पा रहे हैं और वो डिमांड कर रहा है, एक बार बोलेंगे, 2 बार पूछ रहा है, तीसरी बार भी अगर वो पूछ रहा है वही चीज हमें, तो हम कितना इरिटेट हो जाते हैं। और अगर सोचो सिर्फ अगर वो बच्चा हमको वापस मार रहा है, वो हमारे साथ में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो क्या हम फेस करेंगे। एक माँ के दिल पर इसके साथ में वो बच्चे इस तरह से बात करेगा तो क्या बीतेगा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। Now, what Philip and Belly say, tuberculinum lives his life as if burning the candle from both the ends. ट्यूबरकुलिनम जो बंदा है ना, इसको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल दिल खोल के जीने वाला बंदा है। उसको लगता है कि ये जो लाइफ मिला है मुझे, ये बहुत छोटा है और मुझे इतने में बहुत सारी जिंदगी जीना है। इतना खुल के जियो कि जिंदगी में जितनी चीजें हैं हमारे आसपास, वो सारी हमें मिल सके। दिल खोल के जीने वाला बंदा है ये। और उसके साथ में इसीलिए ये एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें भी एक साथ में लेने की कोशिश करता है। इतना जियो कि दिल खोल के, जितना जीना है, छोटी सी जिंदगी है, सब कुछ जी लो इतने में ही। नाउ इसका कोर रूब्रिक में हम जाएंगे तो हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। ट्यूबरकुलिनम जो है उसको सिर्फ और सिर्फ अम्यूजमेंट चाहिए अपने लाइफ में। उसका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा है कि उसको हम कहाँ यूज करें और कैसे यूज करें, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसका अम्यूजमेंट एक चीज से नहीं भरता है। जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है, ये बंदा, ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसके आसपास में कितने सारे टॉयज है। इसको एक टॉय से मन नहीं भरता है। कॉन्स्टेंटली उसको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा चाहिए ही चाहिए। इसका एनर्जी लेवल मेंटेन करना, इसको कॉन्स्टेंटली बिजी रखना पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसका एनर्जी लेवल यूटिलाइज करना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और ऐसी चीजों के लिए है ना, पेरेंट्स को ऐसे केसेस में उनका काउंसलिंग करके वो बच्चे का कहाँ क्या इंटरेस्ट है, किस तरह से उसको एनर्जी हम यूज कर सके कि उसको वो चीज आगे काम आए, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, वहां पे हमको इसको डायरेक्ट करना चाहिए। अभी कांस्टेंट डिजायर होता है चेंज का यहाँ पर, एक जैसा, जैसे कि पहले पिक्चर में हमने देखा था कि उसको चेंज कंटिन्यूअसली चाहिए है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चेंज चाहिए है। वैसा ही अडल्टहुड में भी जाएंगे, टीनेजर्स में भी जाएंगे, तो वहां पर भी इसका अम्यूजमेंट ऐसा इसी तरह से है। इसको कांस्टेंट चेंज चाहिए। एक ही चीज के साथ में ये बहुत देर तक अम्यूजमेंट में नहीं रह सकता। इसको पूरा टाइम कुछ नहीं तो कुछ चेंज चाहिए ही चाहिए। और ये चेंज एक चीज से नहीं होता है, इसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर एक चीज साइमल्टेनियसली एक के बाद एक चाहिए। एक के साथ कंटेंट हुआ कि दूसरा तुरंत इसको चाहिए है। नाउ अब ये ट्यूबरकुलिनम है तो इसको ट्रैवल डिजायर फॉर, एक कांस्टेंट फीलिंग है इसका। इसको एक जगह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी रह नहीं सकता है ये एक जगह पर। इक्वल टू इम्पॉसिबल थिंग है इसको कि कहीं एक जगह हम ट्यूबरकुलिनम बंदे को एक जगह बांध के रखें। इसलिए हम इसे किस ट्रैवल करते रहता है ये एक से दूसरी जगह पे। इवन इन अडल्टहुड हम देखेंगे कि ट्यूबरकुलिनम जो है एडल्टहुड में भी, ये ट्यूबरकुलिनम जॉब भी ऐसा प्रेफर करेगा जहां पर इसको चेंज मिलता रहे, एक कांस्टेंट चेंज मिलता रहे। जैसे कि वो टूर गाइड रह सकता है, या फिर कोई न्यूज रिपोर्टर हो सकता है, या फिर कोई इंटरनेशनल
चैनल्स में जो रिपोर्टिंग और करेंगे वैसे बंदे ट्यूबरकुलिनम में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पर उनको बहुत सारी जगह पर ट्रैवल करना मिल रहा है। ये जैसे ही और ये काम भी इस तरह के लेंगे जो बहुत ही रिस्की है, बहुत ट्रिकी काम है, ऐसे ही ये काम लेना पसंद करते हैं। जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टिंग हो गया, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हर एक बार एक अच्छा स्टोरी लेके आना है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक अच्छा कुछ ऐसी चीज लेके आना है जो बहुत ही ज्यादा हमारे चैनल का टीआरपी बढ़ाना है, ये उनका बेसिक थीम होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बहुत ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। अब जब इनका इतना ट्रैवलिंग है, इतना इनका ट्रैवल डिजायर है, इवन ट्रैवलिंग कर रहा है ना जो बंदा, उसका कहीं तो भी एक एम है यहाँ पर कि उसको एक कुछ तो अच्छा स्टोरी ढूंढना है। लेकिन इसके साथ साथ में ये वॉन्डरिंग डिजायर फॉर में भी है। ये वॉन्डरिंग भी बिना वजह भी इधर से उधर घूमना पसंद करता है, इसको नेचर बहुत पसंद है। इवन इसका जो इतना हाइपर एक्टिविटी है ना, इसलिए हम इसका फिजिकल कंस्टिट्यूशन भी देखेंगे ना, तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही लीन थीन काइंड ऑफ पर्सन रहेगा। और चेहरे से ही हमको देख के लगेगा व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ही इज हैविंग राइट नाउ। ये एक कॉस्मोपॉलिटियन जो हम बोलेंगे उस तरह का भी बंदा रहता है। ये बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह, इसका जॉब भी बहुत ही ऐसा लेगा कि ट्रांसफरेबल है, या फिर ऐसा कुछ जो बहुत ही इसका पैशन डेवलप करते रहेंगे, ऐसा कुछ तो भी जॉब लेकेगा वो, कि उसको कहीं तो भी हमेशा एक नया चीज देखने को मिले, नई चीज सीखने को मिले, उसका ऐसा भी कुछ एम रहता है। और जैसे ही वो एक रिस्की जॉब खत्म करके उसको सेटल किया, वो दूसरे उससे वो कंटेंट वाले फेज से तुरंत डिसकंटेंट वाले फेज में चले जाता है। क्योंकि जब वो सेटल हो गया है बिजनेस, तो वो रूटीन में आ जाएगा। उसको रूटीन लाइफ जो है इसका, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब ये जब रूटीन लाइफ ये पसंद नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो वो क्या करता है, तुरंत जॉब शिफ्ट कर देता है। वापस वो इसी तरह का जॉब लेगा जहां पर वापस कुछ तो भी ऐसा रहेगा जो बहुत रिस्की है, जहां पर सेटल करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, या फिर वहां पर कुछ ऐसा है जहां पर नॉर्मली कोई भी बंदा उसको हैंडल नहीं। करेजियस है ये, कि जहाँ पर जो चीज कोई लेना नहीं पसंद करेगा वहां पर ये अपना हाथ डालेगा, और प्रॉबेबली ये उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन जब सक्सेसफुल नहीं होता है ना, तो इसको डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। और जब डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो ये ग्रीफ में भी बहुत जल्दी जाता है। और यहाँ पर ये जब कोई चीज में उसको सक्सेस में नहीं मिला है, तो यहाँ पर इसको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो जब ये डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, ये इसको बहुत तकलीफ देते हैं, ये फेस नहीं कर पाता है एनी काइंड ऑफ फेल्यूर। ये बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए, इसको फेस करना एनी काइंड ऑफ फेल्यूर। तब ये आगे से आके ये डिस्ट्रक्टिव फेजेस में जाता है। अभी जब ये डिस्ट्रक्टिव फेजेस में जा रहा है ना, तो ये बहुत जल्दी डिस्पेयर में भी जाता है, डिस्ट्रक्शन में जाता है, जो कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी काइंड ऑफ रिएक्शंस है। अभी इसके कुछ ऐसे रूब्रिक्स है जो बहुत अच्छे भी हैं, कुछ बहुत बुरे भी हैं, और जो हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्या कर कैसे ट्यूबरकुलिनम हम सामने आया तो हम किस तरह से उसको पहचानेंगे। अभी ट्यूबरकुलिनम के कुछ गुड रूब्रिक्स: ही इज एन एक्टिविटी डिजायर फॉर, he is very cheerful, he is very adventurous, he is very innovative, he has lots of ideas, there is abundance of ideas in him, there is precocity of children, he is very courageous, he is defiant, he is very much audacious। इतना ज्यादा ये हमको जो छोटे बच्चे हैं ना, जब कोई बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करे ना, या फिर कोई दो बच्चे हैं हमारे, तो जब ऑलमोस्ट समझो कि बड़ा बच्चा जो है वो 4-5 साल का है और दूसरा जो है वो 1-2 साल का है,
तो जब बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई बहन को जब संभालता है या उसकी जो केयर करता है, जो बहुत ही जो उसके एज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही है, वैसे इसमें हम देखेंगे ना तो हमको ये बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। कितना अच्छा लगेगा कि इतना केयर कर रहा है वो, इतने जल्दी एक बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से ले लिया उसने, तो ये हमको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ में कई बार ऐसा होता है ना कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो कुछ ऐसी हरकतों में बिजी हो जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, लाइक स्मोकिंग और एनी अदर थिंग, और टीजिंग गर्ल्स और एनी टीजिंग द टीचर्स, लाइक वहां पर हमें प्रिकॉसिटी जो है वो बच्चों की, वो बिल्कुल वो प्रिकॉसिटी जो है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो इट इज अ गुड वर्जन ऑल्सो एंड इट इज इन अ वेरी बैड वर्जन ऑल्सो। अब इसके पास में इतने इनोवेटिव आइडियाज है, इतने इनोवेशन है इसके पास में, इतना क्रिएटिविटी है इसके पास में कि हर जगह पे ये अपना क्रिएटिव जो भी वो काम करेगा ना वहां पर उसकी क्रिएटिविटी झलकती है। वी कैन सी द क्रिएटिविटी इन हिज वर्क। और इतना ज्यादा करेजियस है, ऑडेसियस है, ये हमने पहले ही बात देखा है। और अभी इसके टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पर आ रहा है, अभी ये एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में है, अगेन एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ में भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट में भी है। ये अभी एंटिसिपेशन में है, ये तो समझ रहा है कि उसको आगे का जो हो रहा है उस क्या होने वाला है वो सोच के भी कई बार तकलीफ होना शुरू हो रहा है। डोमिनेशन में ये डोमिनेशन जो है ये पेरेंट्स का भी हो सकता है, बॉस का भी हो सकता है, टीचर्स का भी हो सकता है, जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा फोर्सफुली कोई काम करवाया जा रहा है जो उसे नहीं करना है। जैसे कि या फिर कई बार ऐसा बोलेंगे, अगर समझो कोई वाइफ है और वो ट्यूबरकुलिनम है और उसका हस्बैंड अगर उसको बहुत डोमिनेट कर रहा है, तब भी वो फीमेल कहीं ना कोई कंप्लेन लेके आएंगी। ट्यूबरकुलिनम पेशेंट्स जो है वो किसी एक रिश्ते में बंध के रहना एक ही साथ कई सालों तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन जब ट्यूबरकुलिनम बंदे को उसके मैच पार्टनर जब मिल गया तो वो दोनों का जो कपल है वो आइडियलिस्टिक कपल भी बोल सकते हैं हम उसको, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा, बहुत इनोवेटिव रहेगा दोनों भी। लेकिन अगर समझो कोई उसमें से एक अगर डोमिनेटिंग है तो इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। इसलिए ये कई बार लव डिसअपॉइंटमेंट में जाता है, जहां पर उसका जो डिमांड है, जो उसका प्यार, उसको प्यार नहीं मिल रहा है, जब वो बहुत कुछ दे रहा है पर प्यार नहीं मिल रहा है, तब उसे तकलीफ होना शुरू होता है। और अब कुछ इसके ऐसे पॉइंट्स जो कि अगली है, हमको देखने को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अभी जब ये कंटेंट के फेज में है तो कंटेंट से डिसकंटेंट के फेज में भी जा रहा है। डिसकंटेंट में फेज में जब जा रहा है तो उसके साथ में ये कई बार हमको ऐसा दिखेगा कि ही इज अ वेरी कॉरल्सिव बंदा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसको देखने का, बहुत ही इंसोलेंट रहेगा वो। जैसे कि हमारे केस में देखा कि ही इज वेरी कॉन्ट्ररी टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स बोलो या फिर कोई भी अथॉरिटी बोलो, उसके अगेंस्ट में जाता है वो, जो कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर बना के रखते हैं, एक कांस्टेंट डोमिनेशन है उसके ऊपर जो कि वो झेल नहीं पा रहा है। अभी जब ये झेल नहीं पा रहा है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, उसको रिएक्ट करेगा, और जब वो रिएक्ट कर रहा है तो ही इज गोइंग इन अ वेरी अब्यूजिव लैंग्वेज। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने के बाद में क्या होगा, इसके आगे जाके इसको अगर इस टाइम तक होल्ड ऑन कर लिया तो इट्स ओके, वेरी नाइस, लेकिन इसके आगे वो कॉरलसम के साथ साथ में ही इज गेटिंग इनटू फाइट्स आल्सो। जो भी उसके आसपास के बंदे हैं जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, वहां पे वो फाइटिंग में चला जाएगा।
और फाइटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर होता है उसका डिस्ट्रक्शन शुरू। और जब ये डिस्ट्रक्टिव फेज में जाता है तब उसका क्या बोलेंगे, उसका अधोपतन शुरू होता है। यहाँ पर उसका सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। ये यहाँ तक भी हम उसको कंट्रोल कर लिए तो इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द पेशेंट। लेकिन अगर यहाँ तक भी उसको कोई राइट मेडिसिन नहीं मिला, उसको ट्यूबरकुलम नहीं मिला, ये स्टेज में भी अगर नहीं मिला, तो ही इज गोइंग इन द सोसाइटल डिस्पोजिशन, जहाँ पर उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, जहाँ उसके मन के हिसाब से उसको कोई चीज करने को नहीं मिल रही है, उसको ट्रैवल करने को नहीं मिल रहा है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो युटिलाइज नहीं हो रहा है। असं म्हणतात ना, तो आतल्या आत आता कुडतोय, आता त्याला त्रास होतोय या सगळ्या गोष्टींचा, तेव्हा हा सोसायडल डिस्पोजिशन मध्ये जातो। नेक्स्ट इज, इसका कोर रूब्रिक ये है, टोर ऑफ द ट्यूबरकुलिनम इज change desire for, he is a cosmopolitan, he is, then there is elements from the disappointment and there is destructiveness. Now यहाँ पर हम रेमेडी डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। ये बंदा छोटा बच्चा जो आया, तो ये मुझे है ना स्टार्टिंग में मुझे टारंटुला भी लगा था कि टारंटुला भी बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, लेकिन tarantula is very much manipulative, he is very cunning in his behavior, even he will resort to feigning to get his work done, जो कि ट्यूबरकुलिनम में बिल्कुल भी नहीं है। उसको अपना काम किसी से कराने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, उसको अपना काम खुद करना पसंद है, किसी के भरोसे वह कहीं काम नहीं कर सकता है। उसे मुझे जो करना है मुझे मेरे हिसाब से करने दो, मेरा लिबर्टीनिज्म मेरे पास में रहने दो, मुझे किसी के अंडर काम करना है ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरी क्रिएटिविटी को कर्टेल कर रहा है देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ट्यूबरकुलिनम। फिर इज नेक्स्ट इज बेलाडोना। बेलाडोना भी अम्यूजमेंट में है जैसे कि ट्यूबरकुलिनम में भी है, लेकिन बेलाडोना जो है वो लाइट रहना पसंद करता है, वो लाइट डिजायर में भी है, लेकिन ट्यूबरकुलिनम नहीं है। ट्यूबरकुलिनम को क्या है ना, हर चीज से एक एक्सपीरियंस लेने को पसंद है, उसे सिर्फ इतना छोटा सा मिल गया, कुछ सीखने को मिला, उतने में उसकी शांति नहीं है, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक चीज उसको सफिशिएंट नहीं है, एक के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ में तीसरा, तीसरे के साथ में चौथा, हर एक चीज उसको चाहिए है, एक से उसका मन कभी नहीं बन। अभी नेक्स्ट इज लैकेसिस। लैकेसिस भी अम्यूजमेंट डिजायर फॉर्म में है, जैसे कि ट्यूबरकुलिनम है, लेकिन लैकेसिस जो है वो बहुत ही पैशनेट है, उसके साथ साथ में वो रिवेंजफुल भी है। अगर यहाँ पर कोई कपल है ऐसे कंसिडर किया तो, और अगर वो छोड़ के गई उसको कोई उसकी गर्लफ्रेंड, तो अगर ये मेरी नहीं हुई ना तो वो किसी और की भी नहीं होने देगा, ये मेरी है, बस मेरी है, किसी और की नहीं होने देगा वो। नेक्स्ट इज चामोमिला। चामोमिला भी बिहेवियर ट्रबल्स में है, वहाँ पर भी हमें बिहेवियर डिजाइन प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन चामोमिला बहुत ज़्यादा इरिटेबल है। फिर भी अगर उसको किसी ने कैरी कर लिया ना तो वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है, कंसोल हो जाता है, उसको हम समझा सकते हैं, उसको हम इतने साथ लेके जा सकते हैं। कैरिड डिजायर फॉर कैरिड में भी है वो, ट्यूबरकुलिनम नहीं है वहाँ पर। इस सो थैंक यू, आई वुड लाइक टू रेस्ट माई सेशन हियर। Any queries? You can ask me any queries about tuberculinum.
कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी. नो, देयर इज नो एंजाइटी. एंजाइटी की वजह से यहाँ पर ओबेसिटी, ट्यूबरकुलिनम पेशेंट हमको ओबेस जनरली नहीं मिलेगा. ही इज अ वेरी स्लिम ट्रिम ऑफ काइंड ऑफ पर्सन. डॉक्टर कश्मीरा, विराट विराट अपने जिंदगी में मस्त रहने वाला बंदा है. वो इसका और उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. दोनों अलग अलग चीजें हैं. मस्त मौला है विराट. विराटरम हार्ड फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर में है. ट्यूबरकुलिनम में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कभी भी. वो डेल्यूजन प्रिंस है. वो अपने आप को प्रिंस समझता है. वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक राजा हूँ मैं वाला फीलिंग है उसको. It was a wonderful webinar, Dr. Rupal. So many appreciations we can see. Doctors, we have a request. In case you have any questions, please mention in the chat window, as we will be taking just 2 or 3 questions more. So in case you have, please mention it. डॉक्टर शुभांगी, यस, पोटेंसी मैंने उसको स्टार्टिंग में ट्यूबरकुलिनम 200 दिया था, लेकिन एज एन ऑन एंड ऑफ मुझे जब भी उसके पेरेंट्स ने कंप्लेन किया है कि उसको टैंट्रम्स कहीं रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने उसको रिपीटेशन भी दिया है. इवन आई हैव टू गिव हिम अप टू 1 m पोटेंसी ऑल्सो. नाउ आफ्टर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 year, अभी उसको कहीं कोई कंप्लेन नहीं है. ही इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल चाइल्ड नाउ. Yes. I have given him tuberculinum on basis of his mental rubrics. जहाँ पे उसके मेंटल्स मैच हुए, वहां पे मैंने उसको ट्यूबरकुलिनम दिया है. यहाँ पे मैंने टीबी उसके लाइफ में हुआ है नहीं हुआ है ये कहीं देखा नहीं है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि ट्यूबरकुलिनम टीबी जिसको हो चुका है उसको दिया जाता है. All right, ma'am. Thank you so much. Dear doctors, we have an announcement. I hope all the doctors must have shared their email ID with us, as we are not sharing the certificate link today. We will be sharing the certificate link to all the doctors who have joined us today on their email ID, maybe within a day or so. Yeah. So in case अगर किसी डॉक्टर ने अपना email ID अभी नहीं